बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मॉरल वैल्यूज क्लास 7 चैप्टर 11। आज की चैप्टर का नाम है बैड इफेक्ट्स ऑफ वेग इंफॉर्मेशन, यानी आधी अधूरी इंफॉर्मेशन की क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं। Once there was a king who was friendly to other kings of his neighbor countries. The problem with the king was that he would post incomplete letters using enigma to other kings, which created misunderstanding and sometimes resulted in a war with that king. तो बच्चों, एक बार जो एक राजा होता है वो फ्रेंडली तो होता है अपने सारे नेबर किंग से, लेकिन उसकी एक बहुत ही गंदी आदत होती है कि वो सबको बड़ी ही इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन के साथ लेटर्स भेजता है, जिसकी वजह से आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है और तो और वॉर भी होने की चांसेस हो जाते हैं। Collection of diamond was the hobby of the king. One day he wrote an enigmatic letter to a neighborhood country asking for a diamond. The letter was as follows: Send me a blue diamond as large as pigeon egg or else. तो एक बार की बात है, जो राजा है उसको डायमंड का बहुत शौक था, तो उसने एक दूसरे राजा को लेटर लिखा जिसमें लिखा हुआ था मुझे डायमंड भेजो वरना, बस इसमें वो खत्म हो जाता था। The king did not complete the letter, which was enough to create misunderstanding. The neighboring country received the letter and read it. He read the letter carefully, but could not understand its meaning. अब उसने ये नेबर कंट्री को भेजा और उसके राजा ने भी अच्छे से पढ़ा लेटर, बट उसे कुछ समझ नहीं आया कि इसने लेटर में क्या लिखा है। From the first part of the letter, the neighboring king guessed that the first king had asked for a diamond. पहले चैप्टर से पहली लाइन से उसे लगा कि हाँ उसने डायमंड मांगा है उससे, which was large as a pigeon's egg, जो कि pigeon egg जितना बड़ा हो। But the neighboring king did not have any such diamond, so he replied the first king, maintaining the same anger, we don't have such diamond, and if we had, तो उसने भी क्या करा, उसने भी इनकम्प्लीट लेटर लिख दिया उसके लिए कि हमारे पास ऐसा कोई लेटर नहीं है, और अगर हमारे पास होता भी तो, ऐसे करके इनकम्प्लीट लेटर लिख दिया उन्होंने भी। The first king read the lines but could not find the meaning of the incomplete portion of the letter and was angry. अब उस राजा ने वो इनकम्प्लीट लेटर पढ़ा और उसे भी कुछ समझ नहीं आया, जिससे उसे बहुत गुस्सा आ गया। He completely misunderstood the letter. He considered as an arrogance of a neighboring king and even waged a war against him. अब उसे वो इनकम्प्लीट लेटर से इतना ज्यादा गुस्सा आया बच्चों कि वो उससे वॉर तक छेड़ने को तैयार हो गया। The war continued to about a fortnight. A number of people from both sides died, but there was no possibility of ceasefire. At last, a third king had to intervene and arrange a meeting between the two. अब लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ गई बच्चों की दोनों साइड के जो सिपाही थे उनकी भी डेथ हो गई और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा था। फिर नेबरिंग कंट्री का जो थर्ड किंग है उन्होंने आपस में बैठ के दोनों को मीटिंग बिठाई। When they meet each other, the neighboring king asked the first king, "What did send me a blue diamond as large as pigeon eggs or else means?" कि तुम्हारे जो मुझे लेटर भेजा कि मुझे किंग्स इतना बड़ा पिजन जैसा अंडे जैसा डायमंड भेजो, नहीं भेजोगे तो इसका मतलब क्या हुआ? As if the diamond of the size of pigeon egg was not found, some other diamond could be sent to me. But what is the meaning of we don't have a diamond and if we had? तो वो उसे समझाते हैं कि इसका मतलब था कि अगर तुम्हारे पास पिजन के अंडे जितना बड़ा डायमंड है तो भेजो, नहीं हो तो कोई सा भी भेज दो। और वो पूछे तो तुम्हारे लेटर का क्या मतलब था कि मेरे पास उतना बड़ी नहीं है और होता भी तो। Especially the dotted portion. The neighboring king replied, "It is also very simple. It means if we had much such diamond, we would have gladly sent it to you." Thus, they both had communication clear. तो वो भी समझाते मेरे की भी बात का मतलब बहुत ही सिंपल था कि अगर हमारे पास होता तो हम तुम्हें दे देते। इस तरीके से उन्होंने आपस में कम्युनिकेशन क्लियर करी। Both the king realized the mistake of writing incomplete information. They embraced each other cordially and promised not to make such mistakes in the future. अब दोनों जो किंग्स उन्होंने अपने में आपस में बात समझी और एक दूसरे से वादा की कि ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग फ्यूचर में नहीं होगी। तो इसमें हमारे क्या थॉट्स हैं? Before sending message to other, ensure that the reader would easily understand it. कोई भी मैसेज, कोई भी चीज भेजने से पहले इंश्योर करो कि दूसरे को वो बात तुम्हारी समझ में आए। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन समटाइम्स कॉज ग्रेट लॉस। अगर हम इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन एक दूसरे को देंगे उसकी वजह से बहुत सारे लॉस और बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है। और हमें क्या याद रखना है? नेवर यूज इन विद वाइल राइटिंग अ कम्युनिकेशन, राइट कंप्लीट सेंटेंस। हमें डॉट क्वेश्चन मार्क ऐसी चीजें यूज नहीं करनी चाहिए लेटर में और हमेशा कंप्लीट लेटर लिखना चाहिए।
ऑलवेज बी क्लियर ऑन पार्ट ऑफ योर कम्युनिकेशन। हम दूसरों से क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं, हमें उसके लिए हमेशा बहुत ही क्लियर रहना चाहिए अपने वर्ड्स के लिए। रियलाइज अ मिस्टेक बिफोर इट प्रूव्स टू बी डेंजरस। हमें अपनी मिस्टेक, हमें अपनी गलती जल्दी से जल्दी रियलाइज करनी चाहिए, इससे पहले वो बहुत ज्यादा इतनी बड़ी हो जाए कि दूसरा हमारे आसपास के जो लोग हैं उन्हें भी उसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो। ठीक है बच्चों, अब अगली क्लास में अगला चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।